بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ سن 1206 مارچ کا مہینہ، شہید محمد غوری کے جنازے کو دفن کرنے کے بعد جب سوگوار قافلہ خیمے پہنچا تو شام ہو چکی تھی، مشالیں جلا دی گئی تھیں، مغرب کی نماز ادا کی گئی۔ نماز کے بعد نائب سلطان نے اپنے قریبی رفیقوں کو بلا کر مشورہ کیا۔ وہ یہ طے نہیں کر پا رہے تھے کہ قافلہ یہاں سے غزنی کے لیے روانہ کیا جائے یا واپس لاہور چلے اور ایک بڑی فوج لے کر غزنی چلا جائے گا۔ امیر بنگال بختیار خلجی نے کہا، سلطان حضرت، ہم سب آپ کو سلطان کے عہدے پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ غزنی چلنے سے پہلے میری رائے میں بنگال، بدایوں اور دلی میں موجود فوج کو لاہور طلب کر لینا چاہیے۔ ماں ارجمند گوری نے کہا، مجھے اب بھی یقین ہے یلداؤس کا اس خونریزی میں ہاتھ نہیں ہے۔ اسے سلطان حضرت اپنے غلام سرداروں میں سے سب سے زیادہ مانتے تھے اور میں تو اسے اپنا سب سے عزیز بیٹا مانتی تھی، اس لیے اسے ہمیشہ اپنے پاس غزنی میں رکھتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں زیادہ غصے والا جوان تھا، کہیں وہ اپنے غصے کی وجہ سے کسی جنگ میں قتل نہ کر دیا جائے۔ میرا خیال ہے فوج بلانے کی ضرورت نہیں ہے، غزنی چلنے میں کوئی خطرہ نہیں۔ شہادت کا یہ واقعہ وحشی دمیق قبائلیوں کی وجہ سے انجام دیا گیا ہے۔ التتمش صبح تک قبائلیوں کو گرفتار کر کے لے آئے گا، اس کے بعد یہ واقعہ صاف ہو جائے گا اور ہم لوگوں کا قافلہ بنا فوج کے غزنی کے لیے روانہ ہو جائے گا۔ وہاں الطاف گوری اور یلدوز ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ یہ سننے کے بعد قطب الدین نے کہا، ماں کی رائے ٹھیک ہے۔ التتمش، تم کچھ جنگجوؤں کو لے کر اسی وقت جنگل میں روانہ ہو جاؤ۔ تمہارے ساتھ تیر انداز و تلوار باز گھڑ سوار ہوں گے۔ جنگل میں محتاط رہنا، پہلے قبیلے کا محاصرہ کر لینا، پھر حملہ کرنا۔ کچھ دیر رکنے کے بعد قطب الدین نے بختیار خلجی سے کہا، تم فوج کی ٹکڑی کے ساتھ خیموں کو چاروں طرف چوکیداری کرو گے، دیکھنا کوئی سپاہی رات میں سونے نہ پائے۔ پھر خواتین سے کہا، تم سبھی اپنے پاس خنجر رکھو، تمام رات عبادت اور تلاوت قرآن کے ساتھ گزاری جائے گی۔ اس کے بعد قریب 40 گھڑ سواروں کا قافلہ جنگل میں واقع دھمیق قبیلے کے ٹھکانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ ہوشیاری کے چلتے یہ لوگ اپنے ساتھ مشال نہیں لے گئے تھے۔ جنگل کے درمیان جہاں دھمیق قبائلیوں کے خیمے تھے وہاں جگہ خالی تھی، کوئی خیمہ نہیں تھا۔ التتمش نے گھوڑے سے اتر کر دیکھا، خیموں کے بیکار سامان، بانس بلیاں ادھر ادھر پڑی تھیں۔ التتمش سمجھ گیا تھا یہ لوگ واردات کے بعد فرار ہو گئے ہیں۔ وہ اندازہ لگانا چاہتا تھا یہ لوگ کس طرف گئے ہوں گے۔ وہ سوچ رہا تھا تبھی دور سے ایک مشال اسی طرف آتی دکھائی دی۔ التتمش نے کہا، کوئی تیر مت چلانا، اسے آنے دو۔ قریب آنے پر دکھائی دیا یہ ایک منگول قبائلی تھا۔ اس نے آ کر ادب کے ساتھ پوچھا، حضرت آپ لوگ کون ہیں اور کس کی تلاش کر رہے ہیں؟ التتمش نے پوچھا، پہلے یہ بتاؤ کیا تم قبیلہ دھمیق سے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں قبیلہ دھمیق سے ہوں، لیکن مجھے قبیلے کے سردار نوجان نے قبیلے سے نکال دیا ہے۔ التتمش نے کہا، کیوں نکال دیا ہے؟ اس نے بتایا، حضرت ایک دن سردار سوجان نے ایک شہزادی کو اغوا کر قبیلے لے آیا تھا جس کی میں نے مخالفت کی تھی، تبھی مجھے قبیلہ بدر کر دیا گیا تھا۔ بعد میں نے سنا سردار سوجان کا سر بادشاہ سلامت نے قلم کر دیا تھا۔ بعد میں نیا سردار اس کا بیٹا نوجان بنا تو مجھ سے ان لوگوں کی نفرت اور بڑھ گئی۔ تب سے میں اکیلا قریب میں ایک گفا ہے اسی میں رہتا ہوں۔ آپ لوگوں کی آہٹ سنا تو آ گیا۔ التتمش نے کہا، مجھے اپنا نام بتاؤ اور یہ لوگ کہاں گئے ہیں؟ قبائلی نے بتایا، حضرت میرا نام صہبان ہے، یہ لوگ
करीब 2 हफ्ता पहले यहाँ से किसी दूसरे पड़ाव के लिए मुंतकिल हो गए हैं। शुमाल की तरफ पहाड़ों में कहीं चले गए हैं। हजरत, उन्हें तलाशने में आपको महीनों लग जाएंगे। फिर रुककर उसने कहा, हजरत, उन लोगों ने कोई खता की है तो उनको इबरतनाक सजा देना। मेरा दिल रो रहा है, मुझे तसल्ली हो जाएगी। इल्तुतमिश ने पूछा, क्या कभी कबीले में कोई फौजी तुर्क सिपाही या फौजी आया था? उसने बताया, हाँ हुजूर, एक दिन चादर ओढ़े हुए एक घुड़सवार आया। वो भेष बदलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कोई सुल्तान लग रहा था। उसने सरदार को कोई काम सौंपा था, क्योंकि उसी दिन पता चला था कबीले में सोना तकसीम किया गया था। हमको अंदाजा है किसी के कत्ल का ठेका दिया गया था, क्योंकि ये लोग यही एक काम है जो कर सकते थे। तुमने सही कहा, उन लोगों ने बादशाह सलामत को कत्ल कर दिया है। अब तुम्हें मेरे साथ चलकर उस शख्स की पहचान करनी है जिसने कत्ल का ठेका दिया था। वो राजी खुशी इल्तुतमिश के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। ये लोग नमाज फज्र से पहले वापस खेमे पहुंच गए थे। कुतुबुद्दीन नमाज फज्र से फारिग हुए तो कबायली को उनके सामने पेश कर इल्तुतमिश ने पूरा वाकया बताया। कुतुबुद्दीन ने कहा, इसको लेकर तुम गजनी जाओगे, वहां यल्दौस को दिखाकर इससे पहचान कराओ, लेकिन यह सब बहुत लंबा है और वक्त बहुत लगेगा, तब तक क्या किया जाए? इल्तुतमिश ने कहा, हजरत, जिसने भी ये काम किया है उसका इरादा जाहिर है। अगर यल्दौस का हाथ है तो गजनी बिना फौज को के जाना खतरनाक है। तभी खेमे से दूर जंगलों की तरफ से घोड़ों की आवाजें आने लगी। बख्तियार खिलजी जंगजुओं को लेकर सामने आ गए थे। तलवारें हाथ में लेकर फौज हमलावरों का जवाब देने के लिए तैयार हो गई थी। घोड़ों के करीब आने पर देखा गया ये सुल्तान के वफादार फौजी थे। इनकी तादाद कई सौ थी, कुछ जख्मी भी थे। घुड़सवारों ने उतरकर नायब सुल्तान कुतुबुद्दीन को बताया, हजरत, सुल्तान को कत्ल किए जाने की इत्तला गजनी में यल्दौस को मिल गई थी। उसने पहले से एक बड़ी फौज तैयार कर रखी थी। इत्तला मिलते ही उसने गजनी में सुल्तान के किले पर हमला कर दिया। गजनी के नाजिम हजरत अल्ताफ गयासुद्दीन गौरी को कत्ल कर दिया गया। उनके साथ किले में मौजूद सारे सिपाही कत्ल कर दिए गए। रात में ही उसने खुद मुख्तारी का ऐलान करते हुए सुल्तान मोहम्मद गौरी का वलीअहद बताया और गजनी हुकूमत के सभी अमीरों को गजनी का मातहत बताया है। कुतुबुद्दीन ये सुनकर जलाल में आ गए। उन्होंने कहा, मैं यल्दौस का सिर कलम करने का हुक्म देता हूँ। अभी सब लोग लाहौर चलेंगे, एक बड़ी फौज तैयार की जाएगी, उसके बाद गजनी पर हमला किया जाएगा। इसके बाद यह काफिला लाहौर के लिए रवाना हो गया था। वक्त गुजरता रहा, कई दिन गुजर गए। एक दिन अरमान शाह ने अपने शौहर कुतुबुद्दीन से कहा, हजरत, उस्मान गौरी बहुत रो रहा है। वो अपने वालिद के गम में बहुत ज्यादा सोगवार है। वो गजनी जाने की जिद कर रहा है। कुतुबुद्दीन ने उसे बुलाया और पूछा, गजनी में अब तो तुम्हारा कोई है भी नहीं, तो क्यों जाना चाहते हो गजनी? उसने कहा, हजरत, वालिद अल्ताफ गौरी को कत्ल करने के बाद जालिमों ने उनकी लाश का क्या किया ये मालूम नहीं है, इसलिए तसल्ली करना चाहता हूँ। लाश को अगर दफना दिया गया होगा तो मज़ार पर फातिहा पढ़कर चला आऊँगा। ठीक है। कुतुबुद्दीन ने इल्तुतमिश को बुलाकर कहा, उस्मान की हिफाजत का इंतज़ाम करके इसे गजनी रवाना कर दो। इल्तुतमिश ने उसके साथ कबायली सहबान को कर दिया। उसे हिदायत दी गई, तुम उस्मान की हिफाजत करोगे और सुल्तान यल्दौस को पहचानोगे। क्या यही तुम्हारे कबीले आया था? वापसी पर न सिर्फ तुम्हें सोने से नवाजा जाएगा, बल्कि तुम्हें हम अपनी फौज में शामिल कर इज्जत का मकाम देंगे। सहबान के साथ करीब आधा दर्जन फौजी घुड़सवार कर दिए गए। कबायली सहबान बेहतरीन तीरंदाज
घुड़सवार और तलवारबाज था। उसने गजनी के रास्ते कई जानवरों का तीर से शिकार किया, जिसे खाते हुए यह काफिला गजनी पहुंच गया था। किले से काफी दूर एक मकाम पर मस्जिद देखकर इन लोगों ने घोड़े रोक दिए। मस्जिद में नमाज अदा की गई। उसके बाद नमाजियों ने इनसे दरियाफ्त किया, आप लोग कौन हैं? इन्होंने बताया, हम लोग ताजिर हैं, यहाँ के नाजिम हजरत अल्ताफ गयासुद्दीन गौरी की दावत पर उनसे मिलने आए हैं। नमाजियों ने बताया, हजरत उनको तो कत्ल कर दिया गया है। फिर उस्मान ने पूछा, उनकी लाश का क्या किया गया? उसने बताया, हजरत उनकी लाश शाही तरीके से नमाज जनाजा पढ़वाकर किले के करीब में ही दफनाया गया है। बाकी लाशों को नमाज जनाजा पढ़ाकर कब्रिस्तान में दफन किया गया है। सुल्तान के वफादार सारे फौजी गजनी से फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। सुल्तान ने अपनी नई फौज बनाई है। यह सब ईरान व तुर्कमेनिस्तान से बुलाए गए हैं। तादाद तो सुल्तान ने पहले से दोगुनी कर ली है, लेकिन ये पहले जैसे तालीम याफ्ता और बहादुर नहीं हैं। तीरंदाज और घुड़सवारों की कमी है। इसके बाद उस्मान के कहने पर वो सभी को अल्ताफ गौरी की मज़ार अक़दस पर ले गए। मज़ार देखकर उस्मान फूट फूट कर रोने लगा। मज़ार के सिरहाने तलवार जमीन पर गाड़ दी गई, उस पर टोपी टांगी गई और अल फातिहा पढ़ी गई। शौदा के साले सवाब के लिए अल फातिहा। नमाजी ने उस्मान से पूछा, आप सुल्तान मरहूम के अजीज लगते हैं। जवाब में कहा गया, मैं उनका बेटा उस्मान मोहम्मद गौरी हूँ। नमाजी हैरत से उस्मान को देख रहा था। उसने कहा, आप लोग मेरे घर चलकर आराम कर लें। उस्मान ने कहा, शुक्रिया, आप मेरे साथी साहिबान को सुल्तान यल्दौस से मिलवा दीजिए या उन्हें दिखा दीजिए, ये बस देखना चाहता है। वो नमाजी साहिबान को लेकर किले की तरफ चला गया। उस वक्त किले की गेट पर सुल्तान यल्दौस खड़ा था। वो फौज की तालीम देखने जाने वाला था। दो लोगों को अपनी तरफ आता देखकर रुक गया। उसके मुहाफिज ने पूछा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? साहिबान ने कहा, हजरत हम फौज में शामिल होना चाहते हैं, हम बेहतरीन तीरंदाज हैं। सुल्तान ने कहा, शायद यह कबायली है। मुहाफिज से कहा, इसको शाम को किले पर बुला लो और धमीक कबीले के सरदार नौजान के साथ लगा दो। मुहाफिज ने कहा, शाम को किले आ जाना। धमीक कबीले के कुछ तीरंदाज फौज में शामिल किए गए हैं, तुम्हें भी उसी में शामिल कर दिया जाएगा। हजरत धमीक कबीले के लोग कहाँ ठहरे हैं? मैं उनसे मिल लूंगा, कह दूंगा सुल्तान ने भेजा है। मुहाफिज ने बताया, ठीक है। किले के शुमाल में कुछ फासले पर उनके खेमे लगे हैं। इसके बाद साहिबान उस नमाजी के साथ वापस आ गया। नमाजी का शुक्रिया अदा किया गया और सभी घोड़े पर सवार होकर लाहौर के लिए रवाना हो गए। कुतुबुद्दीन को पूरी इत्तला दी गई। इस मौके पर इल्तुतमिश ने कहा, हजरत साहिबान और उस्मान ने एक बड़ा काम अंजाम दिया है, लिहाजा इन्हें इनाम से नवाजा जाए। कुतुबुद्दीन ने उस्मान गौरी को अपने वालिद की जगह पर अमीर अजमेर बनाया गया और साहिबान को सोने से नवाजने के साथ इल्तुतमिश की फौज में उनके मुहाफिज दस्ते में शामिल कर लिया गया। सभी को मुबारकबाद देने के बाद इल्तुतमिश ने कहा, मैं साहिबान के काफिले के साथ जाकर धमीक कबीले के सरदार नौजान का सिर कलम करना चाहता हूँ। कुतुबुद्दीन ने मना किया, लेकिन इल्तुतमिश नहीं माना तो कुतुबुद्दीन ने इजाज़त दे दी और कहा कि मोहतात रहना। दूसरे दिन इल्तुतमिश का काफिला गजनी के लिए तैयार हो रहा था। तभी कबायली साहिबान ने कहा, हजरत मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। इल्तुतमिश बहुत खुश हुए और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन को बुलाया। उन्होंने साहिबान को इस्लाम कबूल कराया और उसका नाम मोहम्मद खालिद रखा गया। फिर उसने कपड़े उतारे, जंगी लिबास पहनकर तलवार कमर से लगाई और तलवार निकालकर हवा में लहराते हुए जोरदार अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया। फिर वहां सभी लोगों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए। इसके बाद
करीब 40 घुड़सवारों का यह काफिला धमीक सरदार नौजान की सरकोबी के लिए गजनी रवाना हो गया। 3 दिन बाद ये लोग गजनी पहुंच गए थे। काफिला शहर के बाहर रोक दिया गया था। रात का इंतजार किया गया। रात में नमाज ईशा पढ़ी गई। इसके बाद इल्तुतमिश ने अपने साथियों से कहा, कबीले को खामोशी से चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। 10 तीरंदाज घोड़ों पर सवार तीर से हमला करेंगे। 10 घुड़सवार खेमों के बाहर चारों तरफ तैनात रहेंगे। 10 घुड़सवार पहले मशालों से खेमों में आग लगा देंगे, उसके बाद तलवारबाजी करेंगे। 10 घुड़सवार मेरे साथ सबसे पहले खेमों में घुसेंगे। खेमों पर पहुंचने के बाद उनके सोने का इंतजार किया जाएगा। उनके सो जाने के बाद मेरे इशारे पर हमला कर दिया जाएगा। कोई भी कबायली बचना नहीं चाहिए। इल्तुतमिश का काफिला आहिस्ता आहिस्ता किले के शुमाल में बढ़ता चला गया। थोड़ी दूर जंगलों के बीच एक मैदान में करीब 40 से 50 खेमे काफी दूरी में फैले हुए दिखाई दिए। मशालें खेमों के बाहर रोशन थीं। शदीद ठंडक में खेमों के बाहर सन्नाटा था। इल्तुतमिश ने साथियों से कहा, इनमें धमीक कबीले के अलावा कुछ फौजी भी हैं। इनकी तादाद करीब 200 हो सकती है। सबसे पहले 2 लोग घोड़े के अस्तबल में जाकर उन्हें खूंटों से खोलकर घोड़ों को आजाद कर दें। 2 लोग खेमों के अंदर चले गए। इल्तुतमिश ने 2 लोगों को इनके पीछे इनकी हिफाजत में भेजा। साथ ही तलवारों व असलहों के जखीरे का खेमा तलाश कर उस पर तैनात रहने को हिदायत दी गई। ये लोग चले गए तो इल्तुतमिश ने अपने 10 साथियों के साथ खेमे के अंदर दाखिल हुए। फिर दरवाजों की मशालों से लगातार दर्जनों खेमों में आग लगा दी गई। सोते हुए फौजी बाहर आए तो वह तीर और तलवार का शिकार हुए। घोड़े अस्तबल से भाग गए थे। असलहों के खेमों में शदीद आग की लपटें उठ रही थीं। कुछ ने फरार होने की कोशिश की थी, वो कत्ल कर दिए गए। पूरा खेमा आग की लपटों में जल रहा था। कई दर्जन सिपाही जमीन पर गिरे तड़प रहे थे। करीब 2 दर्जन लोगों को तलवार के जद में लेकर गिरफ्तार कर लिया गया था। खालिद ने धमीक सरदार नौजान को पहचान लिया था। इल्तुतमिश ने नौजान से पूछा, तुमने सुल्तान मोहम्मद गौरी का कत्ल किसके कहने पर किया? उसने कहा, सुल्तान मेरे वालिद सरदार सोजान का सिर कलम किया था, इसलिए मुझे मौके की तलाश थी। लेकिन एक दिन सुल्तान यल्दौस कबीले आए। उन्होंने सोना दिया और सुल्तान का कत्ल करने का ठेका दिया, जिस पर मौका पाकर हम लोगों ने सुल्तान का कत्ल कर दिया। उसके बाद हम लोगों को बुलाकर सुल्तान ने फौज में मुलाजमत दे दी। मुझे माफ़ कर दीजिए हजरत। यह सुनने के बाद इल्तुतमिश की तलवार चमकी और नौजान का सिर कटकर जमीन पर गिर गया। फिर साथियों ने सभी गिरफ्तार लोगों को इबरतनाक सजा दी। कई को फांसी पर लटका दिया गया। इल्तुतमिश ने नौजान का सिर उठाकर कहा, इसे मैं लाहौर ले जाऊंगा। तभी एक खेमे से एक सिपाही को पकड़ कर लाया गया। इल्तुतमिश ने उसकी गर्दन पर तलवार रखकर कहा, अपने सुल्तान यल्दौस से बता देना मेरा नाम इल्तुतमिश है। इंशाअल्लाह मैं यल्दौस का सिर कलम करूंगा। इसके बाद इल्तुतमिश के जंगजुओं ने तलवार हवा में लहराकर अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया और तेज रफ्तार लाहौर के लिए रवाना हो गए। एक अल्लाह से डरने वाले, कलमा नबी का पढ़ने वाले हैं। दीन मोहम्मद के रखवाले, शम्मे रिसालत के मत वाले हैं। रग रग में ईमान बसा है, सीनों में कुरान बसा है। रब के आगे झुकने वाले हैं। राहे हक के हैं हम राही, देती है तारीख गवाही। जुल्म से बढ़ के लड़ने वाले हैं। हल्लू अल्लाह, हल्लू अल्लाह।
नबी की उम्मत, हम पे ये उस रब की इनायत है। लेके चले इस्लाम की दावत, दिल में हर दम शौक़ शहादत है। कैसी भी आए दुश्वारी, पूरी है अपनी तैयारी, हम न कहीं भी रुकने वाले हैं। चट्टानों जैसे हैं इरादे, वक्त पड़े तो ये दिखला दे, हम न कहीं भी झुकने वाले हैं। हिम्मत को हथियार बनाए, परचम हक का हम तो उठाए हैं। दुश्मन जितने जाल बिछाए, हम पे उस रहमत के साए हैं। गहवारा इस्लाम अमन का, हम तो ये पैगाम अमन का दुनिया तक पहुंचाने आए हैं। हम हैं हक की वो शमशीरें, जिनसे टूटेंगी जंजीरें, बातें को समझाने आए हैं। हय्यू अल्लाह हक्कू अल्लाह। फिर से माजी को दोहरा दे, कैसर किसरा याद करा दे, हम खैबर को कदमों से ढा दे, फिर से अपनी शान दिखा दे हम। दुनिया के बातिल हैं जितने, होंगे खत्म वो सारे जितने, लोग सभी ये जानने वाले हैं। चाहे शहीद हो चाहे गाजी, दीन की होनी है सरफराजी, हम तो